Am I audible to all of you? Yes, Sami, you are quite audible. Okay. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. I am Sami Afzal Minhas, your GDSC lead from UD Texila. I hope most of you know me. And if any one of you doesn't, then I'm from 19th session software department. Thank you all for joining the day one of our boot camp today. Our boot camp is mainly on introduction to web development. So since today is the day one, what we will be doing is हम आज काम कर रहे होंगे HTML पे, CSS पे और Bootstrap पे. Okay, first of all, let me ask यहाँ पे किसको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है? Just ping me in the meeting chat तो I can know. आप में से किसको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली? आप लोग इन कॉल मैसेजेस में अपना रिस्पांस दे सकते हैं. तो आई सी काफ़ी सारे बच्चों को इंटरेस्ट है आप में से. तो आई वांट टू आस्क कि आप लोगों ने फिर आज तक वेब डेवलपमेंट में किसी चीज़ के ऊपर काम किए? अगर आप लोगों ने काम किया, आईड रियली लाइक टू नो कि आप लोगों ने क्या-क्या काम किए? Okay, so like most of you are freshers and beginner level. Okay, that's good. Yes, आप लोगों ने basic web pages भी बनाया. That's really good. Okay, basic HTML. That's good. Okay, and I want to ask कि यहाँ पे 21 session से कितने लोग हैं? Okay, so we have quite an audience from 21 session. आप लोगों ने HTML and CSS में courses पढ़े हैं अब तक? Okay, okay, good. That's good. तो क्योंकि आज हमारा बूट कैंप का डे वन actually the whole boot camp is about web development. So what you will be doing is आप लोग start से लेके end तक you will be working on a tiny activity, all front end and all back end. आप एक form बना रहे होंगे and there will be front end and there will be back end as well. Today आज जो हमारा गोल है, we will mainly be working on front end जिसमें हम पढ़ेंगे HTML, CSS3 and Bootstrap. ठीक है? तो I'll just give you a quick go through since most of you I think already know web development क्या है. तो I'll just give you a quick go through. So web developers वो करते क्या है? They create and maintain websites, right? तो web development का जो काम है basically it involves कि आप इंटरनेट के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं एंड ये जो वेब डेवलपमेंट है इसकी बहुत वाइड रेंज है. इट्स नॉट जस्ट कि आप स्टैटिक वेब पेजेस बनाएं या प्लेन टेक्स्ट के पेजेस बनाएं. आप कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस भी बनाते हैं, आप सोशल नेटवर्क्स भी बनाते हैं, नेटवर्क सर्विसेज भी बनाते हैं वेब डेवलपमेंट में. तो इस तरह के कुछ ट्रेंड्स जो हमारे 2022 में एक्सपेक्टेड हैं वेब डेवलपमेंट के. वो प्रोग्रेसिव वेब एप्स हैं, आप लोगों ने इसका सुना होगा. आजकल वेब ऐप से बहुत काम हो रहा है, एआई चैटबॉट्स पे बहुत काम हो रहा है. इसके अलावा आपको एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस या सिंगल पेज एप्लीकेशंस पे भी काम करने का चांस मिलेगा अगर आप फर्दर वेब डेवलपमेंट को परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर में. ठीक है? इसके अलावा यू आल्सो हैव मोशन यूआई और सर्वरलेस आर्किटेक्चर. बट ऐसा है कि वेब डेवलपमेंट इज़ नॉट अ वेरी इजी फील्ड. आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज वेल कि जब हम नए नए यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, so the first thing we try to learn is web development. I never understood why. तो कोई मुझे इसका आंसर करना पसंद करेगा कि आप लोग मतलब इवन मैं भी जब आई थी आई सॉ मेरे क्लास फेलोज भी वेब डेवलपमेंट में ही आना चाह रहे थे. व्हाई वाज दैट? कोई मुझे बताना चाहेगा रैंडमली? या फिर आप लोग मीटिंग चैट में भी लिख सकते हैं इफ यू आर नॉट विलिंग टू स्पीक. Can I say something? यप, श्योर. Okay, so the thing is that
web development is the first thing that attracts you, and since it starts from HTML and CSS, so it basically looks easy to like get into. But the thing that overwhelms most people, and it did for me as well, is that when you start doing it, you realize that there is too much to learn, and it takes a lot of time to learn like a decent amount of stuff to actually be working. So it is easy and it is attractive in the beginning, but the soon as you realize how vast it is, you get scared and you back out of it. ओके दैट वाज अ वेरी सेन आंसर और मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाह रही थी मोस्ट ऑफ अस थिंक कि एचटीएमएल और सीएसएस हाँ ये थोड़ी इजी चीज़ है ये हम कर सकते हैं तो लेट्स जस्ट स्टार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं इट माइट बी अ गुड किक स्टार्ट एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डिसीजन बट हम कभी कभी ये रियलाइज नहीं करते कि इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड एंड वी विल नेवर नो इट ऑल ठीक है इवन इफ मतलब ये डिस्करेजिंग साउंड करेगा कि मतलब आप मास्टर नहीं बन सकते हर एस्पेक्ट में लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि time to time if you're just being that good web developer you still learn a lot of things and you keep learning the first thing about this field is कि आप चाहे इस फील्ड में 10 साल काम करें चाहे 15 साल चाहे 20 साल you will always keep learning ठीक है it means web development is a constant learning process okay हाँ ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंस लेवल्स लोगों के डिफरेंट हो यू माइट मीट अदर वेब डेवलपर्स they might have worked on other domains but you all will always continue to grow as programmers there is not a full stop to it okay so I think that's a thing you guys should know अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट ही करनी है आगे okay and a very good thing about web development is that you can always work remotely since all of the work is all online. You don't really have to live anywhere or आपके पास बहुत सारे options होते हैं. Your job is really broad in terms of web development. So I will not speak a lot today क्योंकि आप लोगों का boot camp is quite a lengthy thing. So I'll just pass it on to our speaker for today. We have Tajamul Latif from our web development section and he is the web development lead and वो आज आप लोगों को start कराएंगे from HTML, CSS and Bootstrap. Day 1 will be mainly about HTML, CSS and Bootstrap. Day 2 will also be HTML, CSS, Bootstrap, but you will be doing further more activities on that. So I hope आप लोगों ने अपने पास VS Code install कर लिया था because you will be working on that. Now I will pass it on to Tajammul. Tajammul is here with you guys and he is going to take over now. Okay, so am I audible to you all? Yes. Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Tajammul Latif and I am web development lead, chapter GDSC UT Texla. And today I'm going to start with basic HTML tags and CSS, and then I will give you the intro of Bootstrap. एंड इसके साथ साथ फिर हम बूटस्ट्रैप की देखेंगे कि बूटस्ट्रैप के साथ हम अपने वेब पेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को, और CSS की टाइप्स क्या हैं और उनको किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और HTML के कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा. क्योंकि जो मेरा जो काम था, मतलब मैंने ये आइडिया लिया था कि हम लोग HTML CSS तो कर लेते हैं फ्रंट एंड, मतलब वो हमें ईजी लगती है, लेकिन फिर जब आगे चीज़ें जाती हैं तो हमें, मतलब मेरे लिए ये क्वेश्चन था कि मतलब डायनामिक वेब पेजेस कैसे होते हैं, मतलब डाटा कैसे आ रहा होता है, कैसे अब अगर हमने कोई डाटा डिलीट करना है तो वो कैसे हो रहा है, बैकएंड पे चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं. तो मेरे लिए ये क्वेश्चन था और इसी को ही मैंने सीखा था और मैं ये चाहता था कि मैं ये आप लोगों को भी सिखाऊं. तो HTML और CSS तो बहुत इजी है, लोग कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप भी इजी है, लेकिन अब वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. जावास्क्रिप्ट के काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, Vue.js है, एंगुलर है, रिएक्ट है, ये ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. और कुछ लोग कहते हैं, मैंने PHP वैसे इसलिए भी चूज़ की थी, कुछ लोग कह रहे थे कि PHP इज़ गोइंग टू डाई, लेकिन PHP कभी मतलब इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं वो PHP यूज़ करती हैं. इंस्टाग्राम जो वेब का है उनका, फेसबुक है, विकिपीडिया है, याहू है, उसके अलावा वर्डप्रेस की जितनी भी हैं वो वर्डप्रेस जो भी है वो सारा PHP पे बिल्ट हुआ हुआ है. तो मतलब ये कहना कि ये PHP डाई हो जाएगी जल्दी, तो मतलब ये कोई भी नहीं कह सकता. जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, Node.js है, वो ग्रो कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पे हैं, लेकिन अगर आप नेट पे चेक करें तो गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं
78.9% जो वेबसाइट्स हैं वो PHP में है, और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ PHP पे काम कर हैं, बनी हुई हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आज स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग ऑन करें VS कोड अपना और स्टार्ट करते हैं हम HTML से। जस्ट वन थिंग गाइस, कि अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज हैं और आप लोगों को कोई चीज़ रन टाइम पे समझ नहीं आ रही, सिंस यू विल बी मूविंग साइड टू साइड विद तजम्मुल, आप लोगों ने जस्ट मीटिंग चैट में अपना क्यूरी मेंशन कर देनी है एंड वी विल मेक श्योर कि आपको वहाँ पे एंटरटेन कर दें, ठीक है? आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप मीटिंग चैट में लिख देना, जो इन कॉल मैसेजेस हैं। तो अगर तो मैं ना देख सकूं, जो मेरी टीम मेंबर है वो देख लेंगे, अगर और वो मुझे बता देंगे या फिर वो खुद आपको वहां पर आंसर कर देंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक HTML से। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा लिस्ट आज के, बेसिकली लिस्ट जो है आज मैं करवाऊंगा वो बेसिक टैग्स होंगे HTML के, CSS का और उसके बाद स्ट्राइप का कुछ लेंगे, और फिर उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम फॉर्म्स बनाएंगे, नहीं तो अगर हम टाइम मेरे पास रहा तो मैं फॉर्म्स आज ही स्टार्ट करवाऊंगा, नहीं तो हम कल फॉर्म स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, सो सबसे पहले जो HTML हमने फाइल बनानी है उसको आप लोग बना लें, यहाँ से आप जाके बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है HTML2। इसको हम बनाते हैं .html एक्सटेंशन से, ताकि जो ब्राउज़र रीड करता है वो .html फाइल को रीड करता है, और इस तरह ब्राउज़र को पता चलेगा कि जो फाइल है वो मैंने अपने वेब ब्राउज़र में इस तरह ओपन करनी है। ठीक है, तो आपने जो फाइल बनानी है आप सिंपली इसको क्लिक करें। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? यस, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, इट्स वेरी स्मूथ। ओके, तो आप लोगों नाम अपने फाइल का कुछ भी रख लें। मैंने इंडेक्स या इंडेक्स 2 रखा है, जस्ट डिलीट, ये मैंने आपको बताने के लिए रखा है। इंडेक्स नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, और .html लाजमी है कि ये HTML फाइल के लिए एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास HTML का टैग। मैंने वैसे एक्सटेंशन की हुई है जो ऑटो क्लोज कर देता है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप लोग एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसको इस पे जाएं, सॉरी, और यहाँ पर लिखें ऑटो क्लोज टैग और इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें। तो जो HTML के जो भी टैग्स क्लोज होते हैं, क्योंकि कुछ HTML के टैग्स हैं जो क्लोज नहीं होते, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है वो HTML के टैग्स क्लोज होते हैं, लेकिन जो नहीं होते वो ऑटोमेटिकली ये उनको पिक कर लेता है। और ये एक्सटेंशन होती है VS कोड की, तो VS कोड के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं मतलब VS कोड करवा रहा हूँ। आप लोग कर रहे हैं एक्सटेंशन ये डाउनलोड? मीटिंग चैट में बता दें। यस। ओके, तो ऑटो क्लोज टैग की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, और उसके बाद चेक करें आपके जो टैग्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज होने चाहिए। मतलब इससे टाइम बच जाता है। वैसे तो खुद भी करना चाहिए, लेकिन इससे हमारे पास टाइम बच जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हेड का टैग। HTML के अंदर हमारे पास दो टैग्स आते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर जो भी आता है वो हमारे पास जस्ट जो ब्राउजर को है वो इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पास। इसके अंदर या तो ब्राउजर की जो स्क्रीन है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, या तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं हम हेड में वो लिंक करते हैं। जो हेड का है इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें ब्राउजर पर शो नहीं होगा, मतलब स्क्रीन पर हमें शो नहीं करवाएगा। ये जस्ट या तो बैकएंड पे रन हो रहा होता है, मतलब सारा इसकी जो फंक्शनलिटी वो बैकग्राउंड पे हो रही होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी का टैग। बॉडी का अब जो भी कुछ काम करना होता है वो हमने बॉडी के टैग में करना होता है। हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, या कोई लिंक्स हैं, तो वो सारी बॉडी के टैग्स में आती हैं। अच्छा, चलिए बॉडी में फिर हमारे पास हेडिंग्स आ जाती हैं। हेडिंग्स में हमारे पास 6 हेडिंग्स आती हैं बेसिकली। H1 सबसे पहली है, और H1 में मैं अपना नाम लिखता हूँ, लेट्स से चैन बूट कैंप लिख लेता हूँ।
H1 क्या है, ये हमसे सबसे जो है ना मोस्ट प्रेफर जो है टैग है, और जो मतलब अगर आपको लोगों को पता हो तो SEO जो होती है, SEO भी के लिए मतलब ये कहते हैं कि अपने आपके जो वेब पेज है उसमें एक ही H1 का टैग होना चाहिए, तो इट्स गुड। और उसके बाद ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ये बेसिकली सीधा मुझे वेब ब्राउज़र में ले जाएगा और मुझे ये शो कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास ये ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं आ रहा तो आप वो भी एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये लाइव सर्वर लिखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये। हो गई डाउनलोड आप लोग बस। Are you guys? मीटिंग चैट्स में बता दें अगर कोई ठीक है, ठीक है। आप लोग ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें और राइट क्लिक करें, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ लाइव सर्वर, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की है वो भी आप सामने देख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप यहाँ जस्ट क्लिक कर लें। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे आपको वेब ब्राउज़र में ले जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि बॉडी में मैंने जस्ट बूट कैम्प लिखा था तो वो बूट कैम्प आ रहा है। और इसका फॉन्ट साइज इतना इंक्रीज क्यों है तो वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो H1 की वजह से है। बेसिकली हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स आते हैं H2, और इसमें इसका फॉन्ट साइज होता है H1 से कम होता है, और इसकी प्रेफरेंस जो है वो भी H1 से कम है। और इसी तरह मतलब हमारे पास और 2 3 4 5 और 6 सिंपली अपने ब्राउजर में जाएं, उसको रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं कि जो H1 था वो सबसे फॉन्ट साइज का इंक्रीज है, फिर H2, फिर H3, H4, H5 और H6। इस तरह ये हमारे पास मतलब 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। और इट्स प्रेफरेबल कि आप मतलब एक अपने जो वेब पेज होता है उसमें एक ही H1 का टैग यूज करें। उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ पी का टैग होता है, पी में हम मतलब ये पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, हमने कोई अपना पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो वो हम इसमें लिखते हैं, कोई भी लेट मी से लॉरम, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट है ये सारा हमें एक पैराग्राफ में शो करेगा, ये हेडिंग में नहीं करना है, ये बोल्ड होगा और इसका फॉन्ट साइज है वो उन सबसे लाइक छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है BR का टैग। BR क्या करता है, BR एक ब्रेक दे देता है आपकी लाइन में। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ब्रेक चाहिए और उस ब्रेक के बाद हमने मतलब हमारे पास एक पैरा है जो नहीं क्या बस नहीं, मतलब अगर यहाँ पर मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइन एंड हो जाए और हमारा जो पैरा है वो न्यू लाइन पे चला जाए। लाइक जैसे ये है एनिमेशन जो भी लिखा हुआ है ये लॉरम की लैंग्वेज है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से न्यू लाइन में चला जाए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर ब्रेक का टैग दे दूंगा। ब्रेक क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा और उसको न्यू लाइन में ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है HR का टैग। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। ये जस्ट एक आप कह लें, ये आप डिवाइड भी करता है आपके सेक्शंस को। देखिए ये एक लाइन आ गई है, डिवाइड करता है आपके सेक्शंस को, और मोस्टली मतलब इतना यूज नहीं होता ये, लेकिन जस्ट आपको लोगों को पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रूल ये एक हमारे पास लाइन होती है, और ये आप इसको देख सकते हैं। काफी मतलब ये इतना यूज नहीं होती वैसे हमारे पास, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं अगर मैं आपको लिस्टिंग का करवाऊँ तो लिस्टिंग हमारे पास होती हैं दो टाइप्स की, एक होती हैं ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं और एक होती हैं हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं।
अनऑर्डर्ड लिस्ट हम देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूएल के टैग के अंदर लिखते हैं, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर इसके अंदर हमारे पास आती हैं एल आई। एल आई होता है लिस्ट के आइटम से, यहाँ पर वो सारे आइटम जितने भी हमने ऐड करने हो वो हम उनको यहाँ पर करते हैं। तो मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। 2 3 4 5 ये देखें। और 1 2 3 4 ऐसे हम लिस्टिंग को हम डिफाइन करते हैं। और इसमें फिर हमारे पास जो आता है, इसमें एक हमारे पास और ऑर्डर लिस्ट आती है। और ऑर्डर लिस्ट में मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब जस्ट आपने यूएल को ओएल कर देना है, बाकी लिस्ट आइटम का टैग उसके अंदर वो सेम ही रहता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर लिस्ट है तो ये 1 2 3 4 5 ये इस तरह से चल रही होती है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहता है हर लिस्ट आइटम के बाद। और यूएल का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप हमें क्या बताती है कि ये नो सॉरी टाइप नहीं है, तो वो ये अब टाइप इसके हम बताते हैं कि हाँ टाइप हमारे पास बेसिकली जिस तरह ये सॉरी आई गेस मैंने कुछ प्रॉब्लम किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट, हाँ सॉरी कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसका हाँ इसमें जो डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है वो डिस्क चल रहा होता है हमारे पास। लाइक कि ये जो हमारे बुलेट्स आ रही हैं ये वाली ये डिस्क आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम सर्कल चाहते हैं या कोई और यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास दो और ऑप्शन है। सर्कल हम शो करवा सकते हैं, ये सर्कल में आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे ये जो हमारे बुलेट्स आ रही हैं। और थर्ड ऑप्शन होती है हमारे पास स्क्वायर की, या हम इनको स्क्वायर शेप में शो करवाना चाहते हैं तो वो हम इस तरह स्क्वायर शेप में इनको शो करवा सकते हैं, लाइक इस तरह। और ऑर्डर लिस्ट के केस में ये था अनऑर्डर्ड के लिए। ऑर्डर लिस्ट के केस में हमारे पास फाइव टाइप की टाइप्स हैं। अगर हम ए कर दें इसको तो ये ए बी सी लाइक इस तरह से लिस्ट आइटम्स को हमें शो करवा रहा होगा, कैपिटल ए बी सी में ए बी सी डी। और बीच में लिस्ट आइटम्स के अंदर जो डाटा है आपका वो शो होगा उस तरह। और अगर आप इसको स्मॉल लेटर में ए लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में आपको शो करवाएगा ए बी सी डी। और इसमें अगर आप 1 2 करना चाहिए क्योंकि 1 डिफ़ॉल्ट होता है, ये इसका मतलब डिफ़ॉल्ट टाइप लेता है 1 2 3 4 5। और उसके अलावा अगर आप रोमन नंबर्स में शो करवाते हैं कैपिटल आई लिखेंगे तो कैपिटल रोमन नंबर्स में शो करवाएगा आपको, लाइक इस तरह। और अगर स्मॉल में आप लिखेंगे स्मॉल आई तो आप इसको ये स्मॉल आई में आपको स्मॉल का रोमन लेटर्स में दिखा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अगर मैं करवाऊँ तो इमेज का टैग आता है हमारे पास। अब सोर्स और ये अल्टरनेट बेसिकली इसका स्टैंड फॉर होता है अल्टरनेट, ठीक है। अगर ये इन केस आता है कि अगर आपकी कोई इमेज लोड नहीं हो रही है, उसका कोई पाथ ठीक नहीं है तो वो अल्टरनेट में ये शो करवा रहा होगा। या कोई इंटरनेट का इशू है तो अल्टर में फिर वो लोडिंग या कुछ भी जो आप लिखेंगे यहाँ पर मैं तो वैसे ये लिखता हूँ लोडिंग, ये शो करवाता है। और सोर्स में आप अपने फाइल का सोर्स देते हैं, मतलब जो आपकी इमेज की फाइल है उसका आप सोर्स देते हैं। मेरे पास कोई ठीक है मुझे गाड़ी का शौक है तो लेट्स डाउनलोड ए कार इमेज। ओके सेव इमेजेस। ठीक है ये मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक
सॉरी, ये GIF ये एक्सटेंशन ठीक नहीं है, कोई और PNG हम ले लेते हैं। PNG एक्सटेंशन और JPEG मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, तो वही हम डाउनलोड कर लेते हैं। JPEG है, ठीक है। डेस्कटॉप इमेज क्यों नहीं आई? Let me download it again. ओके, सो हमारे पास इमेज डाउनलोड हो गई है और मैं इसको अपने फोल्डर में ले जाता हूँ यहाँ से। और इस बेटर प्रैक्टिस की जो आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं, जो भी सोर्स के लाइक फाइल्स होती हैं, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, तो आप उसका एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर आप उसको रखें। आपकी जितनी भी वेब पेजेस की इमेजेस होंगे वो एक इमेज का फोल्डर हो तो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपली मुझे जस्ट इसका पाथ देना, तो पास्ट मेरा इमेज फोल्डर में जाकर और इमेज फोल्डर में curl.png, ठीक है, ये है मेरे पास। और इसके फिर ये सोर्स और अल्टीट्यूड में भी आपको बता दूं कि ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इमेज हमारे पास टैग है और सोर्स अल्टीट्यूड अल्टरनेटिव सॉरी हाइट इसकी कितनी होगी, 20px में देता हूँ, वैसे बहुत कम हो जाएगी, 60px। और विड्थ इसकी कितनी होगी, ये सारे इसके वो हैं इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये बस ये क्लोज कर देते हैं और ये हमारे पास इमेज आ गई हमारी। ये इतनी छोटी इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ हमारे पास 60px दी है और ये इसकी हाइट और विड्थ हम इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर एट्रीब्यूट्स इतने यूज नहीं होते क्योंकि स्टाइलिंग जो भी होती है वो हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं और वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह हम करते हैं। इमेज का टैग हो गया हमारे पास। इमेज के टैग के बाद ऑडियो का टैग आता है हमारे पास। ऑडियो का टैग इसलिए होता है कोई ऑडियो फाइल चलाने के लिए आपकी कोई उसमें ऑडियो फाइल है तो आप उसको रन कर सकते हैं। सोर्स आप इसको इस तरह भी दे सकते हैं वैसे और नहीं तो आप एक सोर्स का एक और टैग होता है, आप उसमें अपना डिफाइन करते हैं कि आपकी जो ऑडियो या वीडियो फाइल है कि उसका सोर्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे मैं यहीं पे कर लेता हूँ और ऑडियो में जाकर ऑडियो और इसके अंदर मेरे पास ये एक ऑडियो फाइल पड़ी है, मैं उसको पिक कर लेता हूँ और आई गेस मुझे सोर्स में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सम टाइम ये पिक नहीं करता। तो इट्स बेटर प्रैक्टिस कि आप ऑडियो का जो भी ऑडियो फाइल होती है वो आप एक सोर्स टैग लें और उसके अंदर आप उसको पेस्ट करें और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सोर्स के टैग में हमारे पास फिर आता है SRC उसका बताता है कि सोर्स फाइल का सोर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं ऑडियो डॉट इमेज हमारा जो ऑडियो है और फिर हमने इसकी लिखनी होती है कि टाइप क्या है इसकी, तो टाइप भी हम लिख देते हैं। टाइप है हमारे पास ऑडियो और MPEG यहाँ पर हमें लिखना होता है। फिर इसके साथ हमारे पास कुछ इसके आते हैं आगे एट्रीब्यूट्स कि लाइक सी ऑटो प्ले होनी चाहिए फाइल के, हमारी जो भी ऑडियो वीडियो फाइल के भी सारे यही बिल्कुल इस तरह काम, सिर्फ वो यहाँ पर वीडियो आ जाता है। वो भी मेरे पास अब वीडियो है नहीं कोई यहाँ पर, तो अगर आपके पास कोई है तो आप लोग ट्राई करें। पहले मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो टैग, ऑडियो के अंदर सोर्स का टैग आपने लेना है, सोर्स के अंदर आपने उसका SRC एट्रीब्यूट लेना है, उसके अंदर आपने जो ऑडियो फाइल होगी आपके पास उसका पाथ देना है, उसके बाद उसकी टाइप भी लिख देनी है आपने, ठीक है। और टाइप के अंदर फिर आपने फर्दर एट्रीब्यूट्स इसके लेने होते हैं ऑटो प्ले। अगर आप ऑटो प्ले करेंगे तो ये जब भी वेब पेज आपका लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएगी ये फाइल। हाँ क्यों नहीं रही,
audio and okay. I guess I am missing this one, source src, और यहाँ पर तो आ जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स एरर क्या आ रहा है। Oh, attack on कंट्रोल्स लिखना है, कैसे भूल गए। यप, कंट्रोल्स लिखना, क्योंकि कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट नहीं है तो वो हमें शो ही नहीं कर रहा था। कंट्रोल्स हमें ये सारा मतलब बताता है कि प्ले का बटन हो और वॉल्यूम का कंट्रोल्स एट्रीब्यूट हमें ये बताता है। तो ये भी लाजमी होता है। अगर आप लोग ये नहीं देंगे, जैसे मैं भूल रहा था, तो इस वो फिर आपको शो ही नहीं करेगा फाइल। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल्स की जगह और ये भी ऑटो प्ले जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आता है इसके ऑडियो के। अगर मैं इसको ऑटो प्ले करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक जब भी वेब पेज लोड होगा ये ऑटो प्ले होने लग जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है हमारे पास, वो होता है लूप का। लूप क्या करता है बेसिकली, ऑटो प्ले जस्ट इसको एक दफा चलाएगा, लेकिन लूप जो है इसको वो बार बार रन करने लग जाएगा। मतलब एक दफा ये कंप्लीट होगा फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लूप का जो है हमारे पास ये करता है। फिर अगर आप इसको रन करवाने देते हैं, लेकिन जैसे कि काफ़ी हमारे पास वीडियोस जो होती हैं वो ऑटो प्ले होती हैं। मतलब अगर आप उस पे वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो ऑटो प्ले होने लग जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो म्यूटेड होती हैं, मतलब उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसको आप म्यूटेड भी कर सकते हैं। अब ये चल तो रही होगी, लेकिन क्या होगा, म्यूटेड होगी। लेकिन इसके लाइक आवाज़, इसका साउंड ऑफ हुआ हुआ है इसका, इस तरह। और इसमें फिर वीडियो मेरे पास वीडियो है नहीं, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा। वीडियो बिल्कुल सारा इसी तरह ही होता है, उसमें भी आप सोर्स लिखेंगे और उसी में भी आप लूप, उसमें भी यही लूप का एट्रीब्यूट आता है, कंट्रोल्स का आता है और म्यूटेड का आता है, इस तरह। ओके, सो इसके बाद हमारे पास आता है एंकर का टैग। एंकर का टैग किस लिए होता है, हमारे पास लिंक्स के लिए होता है। इसको हम ए से लिखते हैं, और एच रेफरेंस जो इसका एट्रीब्यूट है, एच रेफरेंस में बेसिकली हमने वो लिंक देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू गूगल, और इसके अंदर मैं लिंक दे देता हूँ http। तो अब मैं जब ये हमारे पास एक लिंक दे देगा, ठीक है, ये हमारे पास एक लिंक आ गई है। इसको मैं जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी पेज पे लोड हो जाएगा गूगल, क्योंकि मैंने उसके एच रेफरेंस में कौन सी लिंक दी है, गूगल की, तो वो गूगल ओपन कर रहा है। और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, लाइक के अगर डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेल्फ होता है। टारगेट का हम एट्रीब्यूट के इसमें हम डिफ़ॉल्ट जो है वो सेल्फ है, लाइक के जो हमारे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पर जो लिंक जो ओपन होगी वो कहाँ पर ओपन हो। तो इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेल्फ होता है। अगर हम इसको चाहते हैं कि वो नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन हो तो हम उसके लिए ये यूज़ करते हैं टारगेट ब्लैंक, मतलब अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं हम। तो जब भी अब पहले मैं आपने देखा था जब मैंने क्लिक की थी तो क्लिक किया था यहीं पर ओपन हो गई थी इसी वेब पेज में, लेकिन अब मैं जब क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। पहले यहाँ पर इसी टैब में ओपन हो गया था, लेकिन अब वो जो है न्यू टैब में ओपन हो रहा है। और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इसका सेल्फ एट्रीब्यूट होता है। सेल्फ क्या करता है, वो इसी पेज पे मैंने आपको बताया कि वो ओपन करता है। ठीक है, और उसके अलावा दो और आते हैं हमारे पास, पेरेंट भी आता है इसमें और टॉप भी आता है। ये लोग आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो इतने यूज़ नहीं होते, ब्लैंक यूज़ होता है या सेल्फ डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। ठीक है, इसमें ब्लैंक ही रहना है। और उसके बाद
इमेज का टैग करवा दिया एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं टैग्स के बारे में, और उसकी बस एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होती है। लाइक एच रेफरेंस है, वो भी उसको बता रहे कि लिंक कौन सी है, और जिस तरह ये सोर्स क्या है वो उसको बता रहे कि पाथ कहाँ पर इमेज हमारी पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर उसको पिक करो, हाइट क्या होगी उसकी, विड्थ क्या होगी, और ये बताते हैं। ठीक है, और फिर जमल इसके भाई, मेरा जी क्वेश्चन है जी ये, जी अगर हमने कोई लिंक देना है वीडियो का, लाइक यूट्यूब की कोई वीडियो है, इसको हमने अच्छे लुक्स के लिए अपनी वेबसाइट पे हमने उसका थंबनेल डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? यूट्यूब के लिंक के लिए वो हम्म बस इजी है, आप जाके उसका वीडियो का मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। चलें, उसका एक थोड़ा सा प्रोसीजर है वैसे, वो मैं करवा, कि हमने लिंक उठा ऊपर से लिंक कॉपी कर यहाँ से, तो वो वीडियो प्ले नहीं होगी। शायद आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो, अगर किसी ने HTML और वो की हुई है तो वेब में चलेंगे, कर लेता हूँ। ठीक है, एम्बेडेड लिंक आपको आप शेयर के बटन पे जाएंगे, और ये एम्बेड लिंक, यहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है वो आई फ्रेम, और ये वहाँ पर जाके पेस्ट करना है, तब आपकी अगर यूट्यूब से कोई लिंक होगी तो वो प्ले होगी। इसके अंदर आई फ्रेम, इसके सारे अपने लिंक वगैरह उन्होंने सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह सेट किए हुए होते हैं, और हाइट विड्थ भी उन्होंने सारी मेंशन की हुई है, टाइटल भी उन्होंने दिया हुआ है, लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है, ऑटो प्ले भी उन्होंने रखा हुआ है, और आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए कोई टैग नहीं चाहिए होता? आई फ्रेम का ऑलरेडी एक टैग दिया हुआ है, मतलब उन्होंने ना अगर आप जब कॉपी करेंगे ना, आई फ्रेम का टैग होता है वो इसके लिए। डिस्प्ले हो जाता ठीक है। ठीक है, और ये आपकी यहाँ से प्ले भी हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं पैराग्राफ के लिए। बेसिकली हमने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, या इटैलिक दिखाना है, इटैलिक या एम्फसाइज करना है उसको, या उसको स्ट्राइक करना है, तो उसके लिए कुछ टैग्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बी का टैग यूज होता है हमारे, अगर इसमें हमने कोई टैक्स टैक्स के दरमियान हमने कोई है जो इम्पोर्टेंट है, जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड इसलिए हम करते हैं, तो उसको हम इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ये जो अपना मैंने नाम लिखा है वो बोल्ड में शो हो रहा है, बाकी सारा सेम एज इट इज पैराग्राफ चल रहा है। और अगर इसी को ही मैंने इटैलिक में शो करवाना है तो जस्ट मैं आई लिख दूंगा, तो इसको इटैलिक में वो शो करवाने लग जाएगा। इसके बाद ठीक है, ये मैं अब मेरा नाम जो है वो इटैलिक में आ रहा है। फिर इसके बाद अगर मैंने इसको स्ट्राइक, जैसे कि वो लाइन आती है बीच में, स्ट्राइक शो करवाना है, स्ट्राइक करवानी है, तो वो भी स्ट्राइक का टैग आता है उसके बाद हमारे पास। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज, ये भी स्ट्रॉन्ग जो है वो उसकी तरह काम करता है, बोल्ड की तरह, लेकिन इसका मतलब और होता है। लाइक इसको हम जो है वो एम्फेसिस करने के लिए, या ब्राउज़र को मतलब वो दिखाने के लिए कि इसकी जो प्रेफरेंस है, उसकी जो इटैलिक है वो जस्ट सिंपली इसको इटैलिक कर देता है। एम्फसाइज और जो स्ट्रॉन्ग हैं, ये उनको ना ब्राउज़र को भी बताते हैं कि ये इनको आपने प्रेफर करना है इन टैग्स को। स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है, और EM का टैग आता है हमारे पास। EM का टैग इटैलिक की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका डिफरेंस है थोड़ा सा, और वो यही है कि प्रेफरेंस का मतलब बताता है कि ये ब्राउज़र जो है वो इसको इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। ओके, उसके बाद काफ़ी आई गेस टैग्स हो गए हैं, और हम अब स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग। CSS क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है हमारे पास। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एंड सॉरी अगर मैंने आपको HTML का मतलब नहीं बताया, HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारे पास। ठीक है, ये और ये मतलब जो बेसिक हमारे पास जो बॉडी होती है एक वेब पेज की, वो HTML में ही आती है। कोई भी जो वेबसाइट है वो HTML के बगैर वेबसाइट नहीं आ सकती, क्योंकि जो ब्राउज़र है वो हमेशा इसी चीज़ को लाइक रीड कर रहा होता है, HTML के टैग्स को। उसको वो नहीं, सब कोई और अगर लैंग्वेज होगी तो वो ब्राउज़र कभी भी उसको रीड नहीं करेगा। हैं बहुत सारी, जैसे JS है और काफ़ी फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन बेसिक जो होता है वो HTML ही होती है।
ठीक है, अब हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS होती है हमारे पास। CSS होती है हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन होती है और इंटरनल होती है और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन क्या होती है? इनलाइन ये होती है कि हम किसी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट दें और उसके अंदर फिर उसकी लाइक जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के आसपास बॉर्डर आ जाए, तो मैं वो लिखूंगा बॉर्डर 1px। और फिर हमें उसकी टाइप भी देनी होती है क्योंकि बॉर्डर्स हमारे पास डॉटेड आता है और 2-3 टाइप्स और हैं, सॉलिड है और इस तरह की और हैं। बेसिकली सॉलिड ज़्यादा यूज़ होती है, तो सॉलिड और फिर बॉर्डर का फिर आगे हमने देना होता है कि उसका कलर क्या होना चाहिए। जस्ट डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है, मैं ब्लैक दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ के दरमियान ये इनलाइन में स्टाइलिंग कर रहा हूँ अब। ठीक है, पैराग्राफ के दरमियान मैंने एक पैराग्राफ सॉरी बॉर्डर रख दिया है, तो ये और ये कि मैंने किसके थ्रू किया है, ये स्टाइल का टैग दिया है मैंने पी के टैग के अंदर, स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया है सॉरी पी के टैग के अंदर। तो ये इनलाइन CSS है हमारे पास। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पैराग्राफ है इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ से फॉन्ट साइज बेसिकली बताता है कि इसका साइज टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए। लेट मी से 20px, तो ये अब देखें इसका साइज इंक्रीज हो गया, 20px हो गया। और अगर आपने किसी चीज़ की कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग या डिफ़ॉल्ट चेक करना, जैसे ये है H1 है H2 है, इनके डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या हैं, तो आप सिंपली राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं और वहाँ पर ये आपको जहाँ पर मिल जाएगा फॉन्ट साइज 2em। ये भी एक एक्सटेंशन है, सॉरी ये एक यूनिट है। एक जैसे px है हमारा पिक्सल होता है और डिफरेंट होते हैं, मतलब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। em भी है और इसके अलावा हमारे पास vh होता है, wh होता है, व्यू पोर्ट हाइट, विड्थ पोर्ट हाइट। तो वो भी वो रेस्पॉन्सिव में ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन px क्या होता है, px इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये जो है ना एब्सोल्यूट दे देता है कि बस इतना ही जो फॉन्ट साइज है वो 20px ही होना चाहिए और ये चेंज नहीं होता है चाहे हमारी स्क्रीन की साइज जो है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। बाकी जो है वो ज़रा उन पे इम्पेक्ट आता है उनके इस फॉन्ट साइज पे, अगर हम उन फॉन्ट साइज em में रखें या vh में रखें। ठीक है, ये इनलाइन स्टाइल शीट है। और अगर मैं इसका चाहता हूँ कलर भी इसका कुछ और होना चाहिए, अभी तो एक्वा रख लेता हूँ मैं पैराग्राफ का कलर, तो ये उसका कलर भी चेंज कर देगा इस तरह। इस तरह से हम अपनी इनलाइन जो है स्टाइल करते हैं। और अगर हमें दूसरी मैंने बताई थी इंटरनल होती है, इंटरनल आती है स्टाइल के टैग के अंदर और स्टाइल का टैग आता है हेड के अंदर। ठीक है, ये बॉडी में नहीं आ सकता और ना ही HTML यहाँ पर आ सकता है। ये जो स्टाइल का टैग होता है ये लाजमी है कि ये हेड के अंदर है। ठीक है, और फिर हमने इसको एक्सेस कैसे, मतलब फॉर में मैंने इस पैराग्राफ को एक्सेस करना है। चलो मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट जस्ट p लिखूं यहाँ पर और वही सारी प्रॉपर्टी दे दूं यहाँ पर कि बॉर्डर मेरा 1px का हो और सॉलिड हो और ब्लैक कलर हो उसका। ठीक है, एक तो ये मेथड है इसका, लेकिन ये मेथड ठीक नहीं है क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे वेबसाइट के अंदर जितने भी p टैग्स होंगे वो उन सबको दे देगा। लेकिन मुझे तो एक पैराग्राफ के लिए चाहिए था, तो वो इस तरह मतलब नहीं कर सकते हम। ये पी टैग जो करेगा, मतलब यहाँ से जो मैं सिलेक्टर यूज किया है ये पी किया है, ये वेबसाइट में जितने भी पी टैग्स होंगे, कोई और भी मैं यहाँ पर अगर मैं ले लूँ पी टैग यहाँ पर नीचे आकर इसमें मैं लॉग इन कर देता हूँ। ये देखें, अब ऊपर वाले को भी इसने बॉर्डर दे दिया और नीचे वाले पैराग्राफ को भी बॉर्डर दे दिया, लेकिन मैंने तो सिर्फ ऊपर वाले को अगर मैंने चाहिए तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके बाद हमारे पास फिर आते हैं क्लास और आईडीज आती हैं। क्लास क्या करेगा, अगर मैं इसको क्लास दे दूं कोई, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या देता हूं मैं। ठीक है, क्लास क्या है ये, अब इसको इस क्लास इस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करिए। मुझे CSS में जाके जो भी स्टाइलिंग करनी है वो मैं सिंपली फर्स्ट क्लास को यूज करके और जो भी अपने पैराग्राफ है वो मैं इसका स्टाइल कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे, और क्लास के लिए हम यूज करते हैं CSS में जाके डॉट, डॉट के बाद फिर हमने उसका क्लास का नेम लिखना होता है। ठीक है, अब ये देखें, अब सिर्फ मेरी फर्स्ट वाले पैराग्राफ को जो बॉर्डर आ गया
और अगर मुझे सेकंड के लिए अब मुझे के लिए कलर भी चेंज हो जाता और बॉर्डर भी सब पैराग्राफ पे आ जाता। तो लेकिन अब मुझे सिर्फ जो बॉर्डर है वो इस पैराग्राफ के लिए चाहिए और जो कलर है वो इस पैराग्राफ के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ इसको और इसी तरह डॉट, इसको कर्ली ब्रेसेस में, और फिर हम कर्ली ब्रेसेस में उसकी CSS की सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। जो कलर प्रॉपर्टी है वो कलर का बेसिकली चेंज कर रही होती है हमारे पैराग्राफ पे, कोई भी हमारे पास टैग है, ठीक है। ये कलर चेंज हो चुका है, लेट मी कोई जो आपको नजर आए। ठीक है, इसका अब कलर चेंज हो गया और इस पे बॉर्डर आ गया, मतलब अब दोनों को अलग अलग से वो आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब CSS जो है वो हमारी अब इसको क्लास के थ्रू, मतलब फर्स्ट है वो जो स्टाइलिंग होगी वो सिर्फ इस पैराग्राफ को होगी, और अगर जो है सेकंड के अंदर जो भी मैं स्टाइलिंग करूँगा वो जस्ट सेकंड वाले पैराग्राफ को होगी। और ये क्लास का एट्रीब्यूट हमने जो स्टार्टिंग टैग होता है हमारे पास कोई भी उसके अंदर देते हैं। और क्लासेस के बाद हमारे पास आती हैं आईडीज। क्लास बहुत मोस्टली लोग क्लास ही यूज करते हैं, लेकिन आईडीज भी उसी तरह का ही काम करती हैं, इसका जस्ट एक डिफरेंस है और वो मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट आईडी जो है, आईडी को क्लास को हम डॉट से मेंशन करते हैं, लाइक डॉट के बाद हम उस क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद उसकी स्टाइलिंग करते हैं। लेकिन जो आईडी है हमारे पास, आईडी हम हैशटैग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये इसको अगर मैं यहाँ पर डॉट ही लूंगा तो वो उसके नहीं आइडेंटिफाई कर, क्योंकि वो एक क्लास को आइडेंटिफाई करे, लेकिन मैंने अपने पी टैग में आईडी दी हुई है। तो देखें इस पैराग्राफ के जो अराउंड है वो कोई बॉर्डर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर हैशटैग करूंगा, अब उसको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट आईडी की बात हो रही है और इस वो जो आईडी है वो इस पैरा को लगी हुई है और मैंने इसको बॉर्डर देना है, ठीक है। इनलाइन हो गई जो टैग के अंदर आती है स्टाइल के साथ, और यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। और सॉरी, हाँ, इनलाइन होगी और फिर ये इंटरनल हेड के टैग में स्टाइल का टैग देते हैं हम, और उसके अंदर हम सारी अपनी जो भी क्लासेस हैं या हमारे पास आईडीज हैं उनको हम इस तरह करते हैं। अगर क्लास है तो डॉट डॉट के नाम के साथ आएगी, अगर तो आईडी है तो वो हमारे पास हैशटैग के नाम से आएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल एक्सटर्नल इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आपके CSS के लिए आप एक अलग से फोल्डर बनाएं और उसके अंदर जाकर आप अपनी स्टाइल शीट बनाएं। इसको हम सेव करते हैं फाइल को, जो भी स्टाइल फाइल बनाएंगे उसको .css से हम सेव करते हैं, ठीक है। तो पता चल जाता है ब्राउजर को ये हमारी CSS फाइल है और ये मैंने पिक करनी है, ठीक है। फॉर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, या आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मैंने बस कमेंट आउट कर दिया। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मेरे पास आईडी है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्लास है, और मैंने अब एक्सटर्नल शीट एक यूज़ की हुई है, और चलिए मैं कर लेता हूँ फर्स्ट, और उसको मैं चाहता हूँ बॉर्डर आ जाए 1px का और सॉलिड टाइप हो, लेट्स से मैं रेड टाइप रख लेता हूँ, और मैं फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट चाहिए मुझे 30px के अलावा। और अगर तो मुझे ट्रांसफॉर्म भी करना है, लाइक जो अभी जो आ रहा है वो एक ही लाइन में, अगर कोई लॉन्ग पैराग्राफ है मैं उसको चाहता हूँ उसकी लेफ्ट और राइट पे इक्वल, मतलब जैसे हम वर्ड में भी करते हैं, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ये अपर वगैरह केस, मतलब मुझे अपर केस में चाहिए, कैपिटलाइज में चाहिए, वो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कैपिटलाइज, और उसके अलावा आता है और यहाँ पर सॉरी टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर हम दे देते हैं कि हमें सेंटर में चाहिए। सेंटर में करूँगा तो वो पैराग्राफ की जो लाइंस आ रही होंगी जो न्यू लाइन में वो सेंटर से आ रही होंगी, एंड करूँगा तो वो एंड पे चला गया, जस्टिफाई करूँगा तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगर लॉन्ग इतना पैराग्राफ नहीं है तो वो मे भी आपको ना शो हो, और ये अभी करेगा भी नहीं क्योंकि मैंने अपनी HTML में फाइल में इसको लिंक ही नहीं किया कि स्टाइल CSS को जाकर आपने रीड करना है हैशटैग फर्स्ट। HTML को तो मैंने बताया ही नहीं है कि मेरी फाइल कहाँ पर लोकेट कर रही है और उसको मैंने लिंक कहाँ पर किया, ठीक है।
तो ये लिंकिंग का जो है मैंने शुरू में बताया था, जो भी एक्सटर्नल लिंक फाइल्स होती हैं वो हमारे पास लिंक करते हैं, हम उनको भी हेड के टैग में करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एक टैग आता है लिंक का। लिंक के टैग के अंदर हमारे पास REL एट्रीब्यूट होता है। ये रिलेशन बताता है कि रिलेशन फाइल का रिलेशन क्या है जो हम यहाँ पर अटैच करने जा रहे हैं अपने HTML के साथ। ठीक है, तो रिलेशन स्टाइल शीट है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास पड़ी हुई कहाँ पर है, हमने उसका बेसिकली बस पाथ देना है। ठीक है, तो मैंने इसको अब लिंक कर दिया, लेट्स सी, और ये देखें ये चेंजेस हो रही है। अब ये एक्सटर्नल मैंने CSS के थ्रू की है, मतलब यहाँ से बॉर्डर 1 px और रेड होना चाहिए, फॉन्ट सेट, ये मुझे टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हो। ठीक है, और इसके अलावा HTML में और कौन कौन से टैग्स आ सकते हैं, बेसिकली बस यही यूज होते हैं। BR का भी टैग ब्रेक के लिए होता है, HR हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। हाँ, टेबल और इनपुट फॉर्म्स वगैरह के वो मैं आपको करवा दूँ। फॉर्म का टैग आता है हमारे पास एक, हम ये आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्म एक्शन, ये एक्शन का जो एट्रीब्यूट है ये वही कहूँगा बैकएंड के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये बैकएंड के लिए यूज़ होता है। फिलहाल इसको एम्प्टी ही रहने दें। ये आपको जब हम PHP करेंगे मतलब जब हम बैकएंड करेंगे तब आपको मतलब ये मैं बताऊँगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर मुझे फिर आगे टैग्स आते हैं। लेबल का टैग आता है। ठीक है, लेबल, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ नेम, और उसके अंदर मुझे एक चाहिए कोई इनपुट। इनपुट क्या करता है, इनपुट के अब डिफरेंट एट्रीब्यूट के साथ वैल्यूज दे सकते हैं। हमारे पास टेक्स्ट हो सकती है, हमारे पास रेडियो बटन हो सकता है, हमारे पास कोई और सबमिट की एक टाइप आती है, वो उसको बेसिकली बटन दे देते हैं। फिलहाल हमें जस्ट टेक्स्ट ही चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेबल होता है हमारे पास, उसके इनपुट के ऊपर लेबल आ जाएगा। फॉर का टैग बेसिकली लेवल डिफाइन मतलब बता रहा होता है कि कौन से इनपुट के लिए है। मैं ब्रेक्स ले लेता हूँ ताकि मैं इसको अलग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल डाउन पे ये लेबल है, लेबल का टैग आ रहा है। लेबल के टैग में क्या है हमारे पास, और यहाँ पर नेम, अगर यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है ये हम इनपुट के टैग्स में हम लिखते हैं। उसके अलावा ID, इसमें हमारे पास फिर आता है एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि आपने इनपुट में आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स हैं उसमें इनपुट जब आप लिखने हैं तो अंदर आ रहा होता है कि ईमेल आईडी। फॉर एग्जाम्पल मैं ईमेल आईडी देता हूँ और यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी जो टाइप है वो ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, और ये प्लेस होल्डर जो है ये देखें, ये यहाँ पे अंदर शो हो रहा है। ये टेक्स्ट में नहीं आता, लेकिन आप जैसे ही टाइप करना शुरू करेंगे तो वो पीछे से बैकग्राउंड से हट जाएगा। वो जस्ट आपको प्लेस होल्डर इसलिए यूज होता है कि एक बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। ये जस्ट यूजर के लिए होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर, और इसमें फिर हमारे पास इनपुट में आता है पासवर्ड भी आता है। अगर मैं पासवर्ड रखता हूँ तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी अब लिखूंगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब वो शो नहीं होगा टेक्स्ट, क्योंकि मैंने उसके टाइप क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया। ओके, फिर हमारे पास बटन का एक टैग है। बटन में हम सिंपली मैं लिख देता हूँ और टाइप भी इसको मैं कर देता हूँ। हम यहाँ पर भी डिफाइन बटन के भी टैग में हम टाइप का एट्रीब्यूट ले सकते हैं, और सबमिट ये ब्राउजर को बता होगा ये सबमिट का एक बटन है। ठीक है, और ये सबमिट का इस तरह से हो जाएगा। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये नेम, इनपुट और सबमिट ये सारे एक ही लाइन में हैं, मतलब ये न्यू लाइन में नहीं आए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई और टैग लेता हूँ, लाइक P का टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखें इंफॉर्मेशन, अब ये न्यू टैग में चला गया और उसके बाद जो सबमिट का है वो भी न्यू टैग में चला गया। ये क्यों गया, क्योंकि
कुछ टैग्स जो हैं हमारे इसके HTML के कुछ टैग्स जो हैं वो इनलाइन होते हैं, ठीक है। वो जो मतलब ब्लॉक लेवल नहीं होते, वो इनलाइन लेवल होते हैं। जैसे कि बटन है हमारे पास, ए का टैग है हमारे पास, इमेज का टैग है हमारे पास, ये सारे इनलाइन होते हैं। और पी का टैग जो है ये हमारे पास ब्लॉक लेवल है। और फिर उसके बाद ये जो लेते हैं विड्थ, ये इसका ब्लॉक लेवल का मतलब ये कंप्लीट विड्थ लेंगे, ठीक है। ये पी का टैग जो है वो हालांकि इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसने विड्थ ये पूरी मतलब जितनी भी पूरा डिवाइस होगी पूरी डिवाइस की विड्थ से ले रहा है ये इंफॉर्मेशन। इसलिए जो सबमिट का बटन है इसने वो न्यू लाइन में कर दिया। अगर मैं बटन को पी टैग के ऊपर ले जाऊं, अब इनपुट लेबल और बटन एक ही लाइन में आ गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन का जो है वो न्यू लाइन में चला जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहता है कि मुझे हम पूरी विड्थ चाहिए, ठीक है। वो मतलब किसी के साथ स्पेस अपनी शेयर नहीं करता, उसको पूरी विड्थ चाहिए होती है। तो जमल भाई, जी ये जी। सबमिट की जो ये बटन है इसको नीचे लाने के लिए हम BR टैग की यूज करें? नीचे लाने के लिए वो यूज कर सकते हैं और CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर कोई इनलाइन हमारे पास एलिमेंट है तो हम उसको सिंपली डिस्प्ले देकर मैं करके भी दिखाता हूँ। ये बटन है ना हमारे पास, अब देखें बटन जो आ रहा है वो यहाँ पर इनलाइन आ रहा है, ठीक है। और अब मैं कोई किसी क्लास से नहीं कर रहा, ना ही किसी आईडी से कर रहा हूँ, हम सिंपली बटन, क्योंकि मेरे पास एक ही बटन है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैं अगर यूज कर लूँ। और इसको मैं करता हूँ ब्लॉक, ठीक है। अब डिस्प्ले ब्लॉक किया है, ये भी अब पूरी विड्थ लेने लग जाएगा, ठीक है। अब ये भी न्यू लाइन में चला जाएगा। और इसमें हमारे पास फिर पैडिंग, और अगर मुझे पैडिंग भी चाहिए तो वो बता देता हूँ। पैडिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप की तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह लेता हूँ 2px, तो ये क्या करेगा, ये फोर्थ साइड से, क्योंकि हमारे पास जो पैडिंग है वो क्लॉक वाइज चल रही होती है, टॉप फिर राइट बॉटम लेफ्ट से, इस तरह, ठीक है। अगर 2px में सिर्फ 2px लेता हूँ तो इसको दोनों मतलब चारों तरफ से 2px उसको पैडिंग मिल जाएगी। मार्जिन का भी यही सीन है, अगर मैं मार्जिन भी लेता हूँ तो ज़्यादा लेता हूँ 10px, ठीक है। ये देखें पहले ये अंदर था, लेकिन अब ये ऊपर, इसने टॉप से भी 10px लिया, राइट से 10px लिया, बॉटम से भी 10px और लेफ्ट से भी 10px। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम से चाहिए, लेफ्ट से नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ 10px और 0px, ठीक है। जो पहली वैल्यू जो है वो टॉप और बॉटम को बता रही है कि टॉप से भी 10 होना चाहिए और बॉटम से भी 10 चाहिए। जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट को बता रही है, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट से 0 हो लेकिन टॉप और बॉटम से 10 हो। पैडिंग का भी हम इस तरह ही करते हैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल टॉप और बॉटम से 2 चाहिए, लेकिन लेफ्ट और राइट से मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 15px चाहिए, ठीक है। अब ये बटन इसलिए बड़ा क्योंकि लेफ्ट और राइट से पैडिंग मिल रही है वो ये है, और टॉप और बॉटम से जो इसको मार्जिन मिल रही है। एक मार्जिन और पैडिंग का भी डिफरेंस बता दूं, जो पैडिंग होती है वो सबमिट है ना, उसके अंदर अंदर इंटरनल भी पैडिंग दे रही है उसके। जो मार्जिन है, मार्जिन कंप्लीट बॉक्स जो होता है या आपके पास यहाँ पर कह लें बटन जो है हमारे पास, ये उसको जो हमारे पास जो अपर या लोअर लेवल जो टैग होगा उससे मार्जिन देगा, उससे कितना मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। पैडिंग अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं 55, बटन इंक्रीज हो गया, ये इसको यहाँ से पैडिंग, ये यहाँ से अंदर से पैडिंग मिल रही है। और अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे ये बटन है वो ऊपर जो इनपुट है उससे बहुत नीचे चाहिए, मतलब मुझे पैडिंग चाहिए, पैडिंग दोगे तो आप वो ऊपर टॉप से पैडिंग लेगा, लेकिन उसको मार्जिन दिया। अगर मुझे मार्जिन चाहिए तो मैं उसके लिए मार्जिन यूज करूंगा। देखें अब ये मार्जिन है, इन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है वो मार्जिन है, लेकिन अगर सबमिट के इंटरनल जो गैप आ रहा है वो होगा वो पैडिंग होती है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 55 कहता हूँ तो टॉप और बॉटम से इस तरह, ठीक है। और हाँ, दो वैल्यू होती हैं और इसमें सिंगल वैल्यू भी होगी है, फिर इसमें आती है हमारे पास 4 वैल्यूज भी आप ले सकते हैं,
1px टॉप से होना चाहिए, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज चल रहा होता है। 2px राइट से चाहिए, बॉटम से मुझे 4px चाहिए और फिर लेफ्ट से मुझे 5px चाहिए। मतलब ये पैडिंग, और इसमें हम इस तरह मार्जिन भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ वो 2px और 2px, मतलब ये ज़्यादा यूज़ है। टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से इक्वली मुझे चाहिए होती है, तो मतलब ये ज़्यादा यूज़ होती है। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी आती और भी प्रॉपर्टीज हैं। सूटेबल 4 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। जी जी, सूटेबल 2 वैल्यूज होती है। और अपने मतलब रिक्वायरमेंट के लिहाज से होता है। अगर आपको मतलब लेफ्ट से अलग चाहिए, राइट से अलग चाहिए, तो फिर आप 4 यूज कर लें, ठीक है। अगर आपको इक्वली चाहिए, राइट से भी इक्वल चाहिए, लेफ्ट से भी इक्वली स्पेस चाहिए, तो आप वो 2 वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सेंटर में एक ही बस वैल्यू चाहिए, मतलब आपको चारों तरफ से एक ही वैल्यू चाहिए, 5px टॉप से हो, 5pf राइट से हो, 5pf बॉटम से, 5pf लेफ्ट से, तो आप सिंपली बस एक ही पैडिंग लेके 5px कर दें, वो मतलब चारों तरफ से फिर लेगा वैल्यू, ठीक है। और मार्जिन भी इसी तरह का है, ठीक है। और And there is also this possibility of just adding it on a single instance ना, मतलब आप सिर्फ टॉप का भी दे सकते हैं, मार्जिन टॉप करके और बॉटम करके। मैं नेक्स्ट वही बताने लगा था। अगर आपको सिर्फ पैडिंग टॉप से चाहिए तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, सिंपली पैडिंग टॉप लिखें और 2px दे दें, तो ये जस्ट सिर्फ पैडिंग टॉप से लेगी। अगर सिर्फ पैडिंग लेफ्ट से चाहिए तो पैडिंग लेफ्ट लिखें, पैडिंग लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज करें और पैडिंग लेफ्ट 30px कर दें। अगर पैडिंग बॉटम से चाहिए तो पैडिंग बॉटम, और इसी तरह पैडिंग राइट और सॉरी मैंने यूनिट नहीं दिया, और पैडिंग राइट से, ठीक है। 40px कर देता हूँ मैं। मतलब आप अलग भी यूज करते हैं, आपको सिर्फ एक वैल्यू यूज करनी है तो आप सिर्फ एक भी यूज करें। अगर आपको चारों तरफ से चाहिए तो आप पैडिंग का टैग दें और उसके अंदर डिफाइन करें, तो वो भी बेटर है। और मार्जिन भी इसी तरह, अगर आपको सिर्फ मार्जिन टॉप से चाहिए, अगर मुझे जिस तरह आपको दिखाता हूँ, अब मुझे नेम और ये काफ़ी ज़्यादा आपस में मिले हुए हैं, मुझे टॉप से है वो मार्जिन चाहिए, लेकिन लेफ्ट और राइट से या बॉटम से मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली मार्जिन टॉप करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30px, ठीक है। वो उसको 30px का मार्जिन मिल गया। और इसके अलावा CSS क्लासेस का आपको समझ आ गई ना, मतलब क्लासेस और आईडीज हम किस तरह यूज़ करते हैं। हम बेसिकली स्टार्टिंग टैग में एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, और फिर वो जो क्लास है वो उसको पूरे पैरा के जो भी उसके टैग के अंदर होगी वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। हम उसको लाइक कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू CSS। और ये क्लास हम हर टैग को दे सकते हैं, इमेज के टैग को भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइट और विड्थ यहाँ पर नहीं डिफाइन करनी, मैं इसको जस्ट सिंपली क्लास दे देता हूँ और इमेज क्लास कॉपी कर लेता हूँ और स्टाइल शीट में आता हूँ। क्योंकि मैंने क्लास दी है तो मैं इसको डॉट से लिखूंगा, और यहाँ पर मैं आके हाइट लिख देता हूँ, लाइक मुझे 200px हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए मुझे 300px। सर जी जिस तरीके से हम क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं जब कोई स्टाइलिंग ऐड कर रहे थे सीएस में, जी तो जी, अगर हमारे पास आईडी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं बताता हूँ दोबारा। देखें, अब इमेज क्लास क्योंकि मैंने क्लास यूज़ की थी तो इसलिए मैंने डॉट यूज़ किया है। अगर मैं इसी को ही यहाँ से आईडी कर दूँ तो आईडी चाहिए तो मुझे यहाँ पर हैशटैग देना होगा, ठीक है। आईडी जो है उसको हम उसको जो हम मतलब कंट्रोल चाहिए होता है तो हम उसको हैशटैग से करते हैं। अगर हमारे पास क्लास है तो उसको हम डॉट से करते हैं। ये वही रहेगा, क्योंकि अब इंस्पेक्ट पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ जो होगी वो हमारे पास 200px और 300px हमारे पास है, ठीक है। सर आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट आईडी जो है उसको हम CSS में अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हैशटैग से यूज़ करते हैं, और अगर हमने क्लास यूज़ करनी है तो डॉट से हम यूज़ करते हैं।
एज सच इनका कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, बस अपने प्रेफरेबल मतलब जो जिस आपने क्लास यूज करनी है तो आप क्लास भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने आईडी यूज करनी है तो आप आईडी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसा नहीं है कि आईडी जो होती है वो मतलब एक यूनिक होती है, और लेकिन जो क्लास है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे लग सकती है। आई थिंक आई रेड दैट समवेयर। नहीं, क्लास जो है मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्लास का क्या सीन होता है, क्लास में हम मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं क्लासेस। जो आईडी है, आईडी हम जस्ट एक ही यूज कर सकते हैं। लाइक आईडी इमेज क्लास दी है ना, अब यहाँ पर मुझे एक और आईडी चाहिए, फॉर मैं इमेज क्लास 2 कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आईडी ले लेते हैं, ठीक है, ये मैं एक आईडी बना रहा हूँ और इसको मैं 2 कर लेता हूँ। और जहाँ पर लेट्स सी मैं विड्थ देता हूँ, वहाँ पर मैंने 300 px दी हुई है और यहाँ पर मैं देता हूँ 600, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पर भी आकर लिख देता हूँ इमेज क्लास 2, ठीक है। तो ये इसको मतलब उसको समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है, ठीक है। आईडी में जो है मस्ट है कि आपके पास सिर्फ एक ही आईडी यूज हो सकती है, ठीक है। अब ये मतलब वो ऑटोमेटिकली हाइट एंड विड्थ ले रहा है, ये कोई 304 px, मतलब यहाँ से उसको कोई लिंक की उसको समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है, ठीक है। लेकिन जो क्लास है हमारे पास, क्लास हम मल्टीपल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ही मैं जाकर अगर मैं कर दूं जस्ट डॉट और डॉट, क्लास के केस में क्या होता है, क्लास में जो सेकंड क्लास होगी ना, जो एंड पर आ रही होगी, उसको वो प्रेफर कर रहा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास में ये दोनों क्लासेस मैंने एक ही उसमें यूज की हुई है इमेज के टैग में, ठीक है, इमेज क्लास 1 और इमेज क्लास 2, ठीक है। अब इसमें इमेज क्लास 1 में मैंने 300 px विड्थ दी थी, लेकिन वो इसको नहीं पिक करेगा, वो प्रेफर करेगा जो उसको सेकंड, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा देगा। इमेज क्लास 2 जो एंड पर क्लास आ रही होगी उसकी विड्थ को पिक कर रहा होगा वो, ठीक है। वो 600 px को पिक कर रहा है, वो 300 पिक्स को नहीं यूज कर रहा, क्योंकि जो हमारे पास क्लासेस में ये होता है, जो एंड पर क्लास आ रही होती है हमारे पास, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से भी आप दे सकते हैं, तो वो मतलब इसको नहीं यूज कर रहा है, स्ट्राइक आ रहा है इसके ऊपर, वो इमेज क्लास 2 यहाँ से इसको यूज कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है वैसे आईडी और क्लास में। जो आईडी होती है वो हमारे पास बस एक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्लास है वो हम मल्टीपल्स भी यूज कर सकते हैं, और इसलिए काफी लोग जो है ना वो क्लासेस ही यूज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हमें क्लासेस एक से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो क्लासेस यूज़ करते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आईडी भी अलग अपना एक वो है, मतलब आईडी भी अपना एक वैल्यू रखती है और वो अपने लिए यूज़ होती है। लेकिन सीएसएस के स्टाइलिंग में हम दोनों को मतलब इस तरह कर सकते हैं, जो आईडी है उसको हैशटैग से और जो क्लास है उसको डॉट से कर सकते हैं। आपने एक बात की कि जो जब क्लासेस मल्टीपल यूज हो रही हैं तो सेकंड वाली क्लास जो है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सेप्ट होती हैं। हाँ, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंस ऑफ एन आईडी एंड अ क्लास, मतलब अगर एक ही एलिमेंट के ऊपर एक आईडी भी लगी हुई है और एक क्लास भी लगी हुई है तो कौन सी वाली प्रेफर होती है? फिर आईडी को जो है ना, क्लास फिर भी क्लास को ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलती है, आईडी को प्रेसिडेंस नहीं मिलती। आईडी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होती क्योंकि आईडी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। आईडी स्पेसिफिक, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं फिर तो हम्म। वो तो फिर वो उसी को ही यूज कर रहा होता है। जो हमारे पास जो सेकंड क्लास होगी, ओके। नहीं, ठीक है। क्लासेस के अंदर तो ये होता है ना कि क्लासेस में तो जो लास्ट वाली क्लास है वो मोस्ट स्पेसिफिक होती है उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर, जो जी हमारी बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टाइल में। ठीक है। ठीक है। और उसी में जो आईडीज का होता है वो भी यही होता है कि कन्वेंशनल स्टाइल में आपने एक आईडी अगर एक एलिमेंट को दी हुई है तो किसी और एलिमेंट को आप नहीं देते। ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आपके आईडी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगी हुई है तो वो वाली जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस एलिमेंट के लिए होती है। तो नहीं, उस सेंस में आईडी अब क्या कह रहे हैं कि आईडी क्लास के अंदर मतलब आईडी भी लगी हुई है और फिर हमारे एक एलिमेंट के ऊपर एक आईडी भी लगी हुई है। ठीक है, सपोज उसकी आईडी 1 है, ठीक है, और उसी के ऊपर एक क्लास भी लगी हुई है, सपोज सर्कल की या डिव की। लाइक इस सॉरी, तरह डिव मतलब, तो खैर वो स्पेसिफिक हो जाएगा, कंटेनर की क्लास लगी हुई है अगर उसके ऊपर। ठीक हाँ है। लाइक अब इस कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होंगी या जो मतलब आईडी 1 की प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होंगी लाइक अगर इस वो तरह सेम कह है? रहे हैं, लाइक आप इस तरह कह रहे हैं कि एक ही एलिमेंट पे हमने आईडी भी लगाई हुई है, उसकी भी स्टाइलिंग की हुई है, और एक हमने क्लास भी लगाई हुई है, उसकी भी स्टाइलिंग की, तो किसकी हम्म। प्रेसिडेंस होगी? तो इस केस में आईडी, हाँ इस केस में आईडी की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, ठीक है। सही। जो आईडीज की जो हमने प्रॉपर्टीज होंगी वो जो ब्राउजर है हमें वो शो करवा रहा होगा, मतलब उस लिहाज से हमें क्लास को वो नहीं करवा रहा होता, तो सही। आईडी की ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। हम्म।
और अगर क्लासेस के केस में अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो जो एंड लेवल पर मतलब होंगी क्लासेस, मतलब जो एंड लेवल पे होगी उसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। Right. ओके और उसमें कौन सा टैक्स, आई गेस काफ़ी टैक्स तो हो गया, CSS के भी काफ़ी हो गए। और अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। बूटस्ट्रैप का वैसे वर्जन 5 चल रहा है, लेकिन वो आई गेस वो अभी बीटा वर्जन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन 4 काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो अभी न्यू आया बिल्कुल, 4 काफ़ी ज़्यादा यूज है, मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करने लगा हूँ। जाएँ ब्राउज़र पर और बूटस्ट्रैप आप 4 लिखेंगे तो उनकी बूटस्ट्रैप की पूरी एक वेबसाइट आपको आ जाएगी, और वहाँ से आप CSS ये जो आ रहा है, ये CSS ये बेसिकली आपको CDN लिंक दे रहा है आपको एक कि आप कॉपी करके और अपने जो HTML वेब पेज है उसमें पेस्ट करके फिर आप सारी उनकी क्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं है, बूटस्ट्रैप जस्ट एक आप समझ लें जैसे ये स्टाइल CSS की फाइल है ना, वैसे ही एक बूटस्ट्रैप की फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस हैं, लाइक इमेज क्लास, जिस तरह ये मैंने बनाई हुई है। बूटस्ट्रैप ने भी इस तरह की क्लासेस बनाई हुई हैं और उसने अपनी प्रॉपर्टीज उसमें डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उन बिल्ट इन क्लासेस को अपनी जस्ट वेब पेज में यूज कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप हमें एक रेडीमेड लाइक स्टाइल CSS की एक हमें वो देता है फाइल, और उसको हम अपने HTML के में यूज कर लेते हैं। और बूटस्ट्रैप ने हमें लाइक पूरी वेबसाइट में उन्होंने बताया हुआ कि आपने कौन सी क्लास को किस तरह ये अगर कंटेंट्स में जाएं तो ये आपको लेआउट्स, कंटेंट कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज, ये सारे मतलब आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं तो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अगर कंटेनर के लाइक अगर मैं कंटेनर की क्लास यूज़ करता हूं तो वो बता देगा कि कंटेनर की मतलब उसकी फुल विड्थ नहीं लेता। कंटेनर हमारे तकरीबन 90% कंटेनर है, और कंटेनर फ्लूइड जो है वो ये कंटेनर क्लास फ्लूइड जो है वो हमारे पास 100% विड्थ लेती है। मैं आपको मतलब ये यूज़ करके दिखा देता हूँ और फिर मैं बता दूँ कैसे होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने फिलहाल ये लिंक कॉपी करना है, बूटस्ट्रैप 4 लिखें और ये जो CSS के अंदर ये लिंक आ रही है इसको कॉपी करें, और जो हम HTML बना रहे हैं जो सिंपली जाएं और जो आपका है ना style.cs जो आपकी कस्टम फाइल है, ये जो हमने बनाई थी, इसके ऊपर आप पेस्ट करें। ये मैं बताता हूँ इसके ऊपर क्यों पेस्ट करना है। ये इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो style.cs है इसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस हो बूटस्ट्रैप से। लाइक हमने कोई बूटस्ट्रैप की कोई प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो फिर हम वो अगर करेंगे तो ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र लाइक ऊपर से चीज़ों को रीड कर रहा होता है, ठीक है। वो पहले जाएगा बूटस्ट्रैप की क्लास को यहाँ से देखेगा लिंक से जाकर, अगर तो उसको वहाँ पर और स्टाइल CSS में फिर जाकर उसको सेम कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है और सेम ही क्लास है तो वो इसको प्रेफर करेगा जो हमारी कस्टम होगी। तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप को जो अपनी स्टाइल CSS है उससे ऊपर हम पेस्ट करते हैं। और ये इंटेग्रिटी का जो टैग है इसको आप बेशक रिमूव कर दें, इसका एक्सेस कोई यूज़ नहीं होता और इसको रिमूव करने से कुछ भी नहीं होता। हमें बस ये H रेफरेंस चाहिए, और मैं आप अगर कंट्रोल प्रेस करके और आप इस लिंक को अगर आप क्लिक करें तो ये आप सिंपली आपको ब्राउज़र में ले जाएगा, और वहाँ पर आपको ये मिनीफाइड क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह हमने ये किया है ना style.css, ये मिनीफाइड नहीं है, इसके अंदर स्पेसेस आ रही हैं और ये स्पेस है और मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं, और ये स्पेसेस भी जो है फाइल का साइज इंक्रीज करती है। मिनीफाइड क्या करती है फाइल, मिनीफाइड उन सब स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं और फिर मतलब वो एक ही लाइन में सारा कोड लिखा होता है। ये सब इसलिए बनाते हैं क्योंकि साइज का हमने फाइल का साइज हमने डिक्रीज करना हो, और अगर हमने लाइक हमारा कोड किसी को ना रीड करवाना हो तब भी, क्योंकि ये कोई इंसान रीड नहीं कर सकता। अब ये कोड है सारा वही, इसमें सारी प्रॉपर्टीज CSS की यूज हुई हुई हैं और इसमें सारा वही कुछ चल रहा है। लाइक अगर मैं लेट मी जस्ट कॉपी इट ऑल, आपको बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें होता क्या क्या होता है। सॉरी, स्टेप डॉट CSS, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर वही आईडीज और क्लासेस ही यूज हो रही होती हैं, बस क्या होता है कि इसमें हमारे पास बिल्ट इन यूज हुई होती हैं।
टैग्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने यूज़ की हुई होती हैं, और बस उनको हम अपने वेब पेज में यूज़ करके और हम उनको अपने वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले आप लोग, अगर आप लोगों के पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। इंटेली आप लिखेंगे तो आपके पास इंटेलिजेंस की आ जाएगी ये वाली एक्सटेंशन, इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास नेम्स इन HTML। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये CSS में हमारे पास जो भी होंगी ना क्लासेस, वो उनको ऑटोमेटिकली जो बिल्ट इन क्लासेस हैं वो उनको पिक कर लेगा। कंप्लीट क्लास का नेम होता है कि आपके पास BTN के आगे मतलब ये क्लासेस हैं। तो इंटेलिजेंस आप लोग ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। हो गई डाउनलोड? अगर डाउनलोड आप लोगों ने एक्सटेंशन ये इंटेलिजेंस CSS की डाउनलोड कर लिया तो आप मुझे जस्ट बता दें, या कोई माइक ऑन कर दे, मुझे बता दें कि डाउन कर लिया। यस सर। हाँ ओके। इफ ठीक है, इंटेलिजेंस, और इसके अंदर अब हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की जो क्लास है हमारे पास कंटेनर है, सॉरी मैं डिव का बताना भूल गया। डिव क्या करता है हमारे पास, ये भी डिव एक एलिमेंट है HTML का ही, और टैग है लाइक, और इसमें डिव क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है या डिफाइन कर देता है एक सेक्शन हमारे लिए, ठीक है। इस तरह आता है, ठीक है। डिव इसका फिलहाल अगर तो मैं इसको खाली रखूं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कोई क्लास दे दूं और फिर उसके थ्रू मुझे अगर इसको डिफाइन करवाना है तो मतलब इसकी हाइट चाहिए, मुझे विड्थ चाहिए, या इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं, मुझे H1 चाहिए, मुझे H2 चाहिए, कोई पैराग्राफ का है या इमेज का है, तो वो सारा कुछ जो होगा वो सारा कुछ इस डिव के अंदर होगा, इस सेक्शन के अंदर होगा। तो लेट मी जस्ट से H1 और फिर मेरे पास एक P का टैग है और इसमें मैं लिखता हूँ लॉरेन, और फिर उसके बाद अगर मेरे पास कोई A का टैग है तो जमुलम भाई, जी ये डिफ टैग तो जो हमारा रिव्यूअर है उसकी आसानी के लिए ना, हम तो सिंपल अपने P टैग डाल दें, H1 टैग डाल दें तो वो कर सकते हैं हम। नहीं, आसानी के लिए नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमें काफ़ी डिव के अलग अलग हमें सेक्शंस चाहिए होते हैं, क्योंकि HTML में हमारे पास बहुत सारे P टैग्स हो सकते हैं और फिर उन सबको लाइक अलग से क्लास करना, अलग अलग से डील करना, तो ये हमारी अपनी आसानी के लिए भी होता है। और डिव एक हमें जब सेक्शन चाहिए तो बेसिकली हम तब भी यूज़ करते हैं, हमें एक सेक्शन चाहिए और उसमें हमें लाइक मुझे एक सेक्शन चाहिए जो मेरी हाफ विड्थ यूज़ करे। P टैग्स चाहिए, लेकिन P टैग क्या करता है, फुल विड्थ यूज़ करता है। अब मुझे एक P टैग चाहिए जो मेरी हाफ विड्थ यूज़ करे, और एक दूसरा मुझे P टैग चाहिए वो भी हाफ। इसको एक तो ये है कि, और फिर उसके अंदर मेरे पास और भी एलिमेंट्स हैं, मतलब वो कंप्लीट एक सेक्शन है, या कह लें कोई कार्ड है मेरे पास, एक कार्ड में मेरे पास H1 भी है जहाँ पे मेरा नाम है, फिर उसके अंदर मेरा रोल नंबर है, फिर मेरी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब वो मुझे जस्ट एक ही हाफ विड्थ में चाहिए, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब उन सबको जाकर मैं फिर हाफ फिट दूं तो वो ठीक नहीं होता। उसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको एक डिव में लें और उस डिव को उसके अंदर फिर वो सारे टैग्स लिखें, और उस डिव को फिर आप हाफ की विड्थ दे दें या विड्थ 50% दे दें या कुछ भी कर दें, या फिर आपको अकॉर्डिंगली जिस तरह आपने डील करना उस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि डिव भी ब्लॉक लेवल होता है, ये इनलाइन लेवल नहीं होता। ये भी अब फिलहाल क्योंकि मैंने कोई इसकी विड्थ नहीं, तो ये भी फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे डिव क्लास जो है इसकी विड्थ मुझे कम करनी है तो मैं सिंपली डॉट डिव और इसको मैं कर सकता हूँ विड्थ
50%। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जस्ट 50% की विड्थ ले रहा है और बाकी यहाँ जो 50% है वो मेरे पास फ्री है। मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं इसको, लेकिन उसके लिए मुझे इसको, अब ये क्या कर रहा है, 50% विड्थ तो ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, इसका अभी जो विड्थ जो है वो फिर भी ऑक्यूपाई पूरी 100% ही कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं 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 नहीं, सॉरी, हाँ देखें, ये जो विड्थ है वो कंप्लीट 100% ले रहा है क्या, लेकिन जो अंदर जिस कंटेंट उसको इसने लाइक उसको बस महदूद कर दिया, 50% तक की उसको कर दिया बस। हाँ, और मुझे अब कोई और डिव, पहले फॉर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब है तो दोनों 50% के, लेकिन फिर भी हालांकि ये न्यू लाइन में आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये इस तरफ चाहिए था कि 50% ये ऑक्यूपाई करे और 50% ये ऑक्यूपाई करे। लेकिन मसला क्या आता है, मसला आता है कि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल है, ठीक है, वो विड्थ तो 50% ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन वो जो पूरी विड्थ है उसको ही मतलब उसी में ही डिफाइन हो रहा है। इसके लिए फिर हम, अगर हमने इनलाइन भी करना है तो डिव को हम इनलाइन भी कर सकते हैं। और एक और हमारे पास आती है बट इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का करते तो जितनी आती है जितनी उसको लाइक उसका कंटेंट है वो उतनी ही यूज करेगा, और इसके लिए मुझे दोनों को करना पड़ेगा, लाइक और हमारे पास आती है फ्लोट की प्रॉपर्टी। फ्लोट क्या करती है, उस पूरी डिव को, लाइक मुझे राइट पे अगर चाहिए तो वो राइट पे ले जाएगा, अगर लेफ्ट पे चाहिए तो मुझे फ्लोट में आगे हमारे पास, अगर मुझे फ्लोट लेफ्ट चाहिए तो ये फ्लोट लेफ्ट कर देगा। ठीक है, अब फ्लोट लेफ्ट जब मैंने किया तो डिव की क्लास अब दोनों को लगी हुई है। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट पहले वो इस डिव को कर रहा है, ये 50% ऑक्यूपाई कर रही है, और फिर मैंने डिस्प्ले भी इसका इनलाइन ब्लॉक कर दिया था इनका, सॉरी इनलाइन किया हुआ। और फिर फ्लोट लेफ्ट, अगर मैं फ्लोट लेफ्ट नहीं करता ये फिर भी न्यू लाइन में चला जाएगा। फ्लोट लेफ्ट क्या करता है, फ्लोट लेफ्ट पहली डिव को भी अपनी मतलब जो उसकी विड्थ है उसको लेफ्ट पे एडजस्ट कर रहा है, और जो फिर उसके बाद जितनी विड्थ बढ़ती है फ्लोट लेफ्ट फिर उसको उसके बाद जो सेकंड डिव आएगी उसको एडजस्ट करेगा। अगर तो यहाँ पर मुझे 40% 40% और 20% की कोर विड्थ होती है उसको भी मैं फ्लोट लेफ्ट करता तो वो भी यहाँ पर ऊपर आकर एडजस्ट हो जाती है। इस तरह हमारी 100% जो विड्थ है वो कवर हो जाती है। ओके, सो ठीक है, और जैसे हम क्वेश्चन, अभी हमने जब जब फ्लोट लेफ्ट किया तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल थी तो वो लेफ्ट पे चली गई। अगर हाँ हम इसको यहाँ से फ्लोट राइट करते हैं तो जो ऊपर वाली डिव है वो मतलब वो लेफ्ट पे चली जाएगी या वो उधर ही जाएगी और ये नीचे मतलब लाइन में ही रहेगी। कौन डिस्प्लेस इट ऑन, फ्लोट राइट इसको, नीचे वाली को अगर हम फ्लोट राइट करते हैं ठीक तो है, वो क्या ऊपर वाली को लेफ्ट पे करके खुद राइट पे चली जाएगी या अपनी जगह पे रहेगी? नहीं फ्लोट जो ऊपर वाली डिव है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट पे है, ठीक है, और वो 50% मैंने इसको वेट दे दी है। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लोट राइट करता हूँ तो उसके लिए शर्त है कि इसको फ्लोट लेफ्ट लगा होना चाहिए। अगर इसको फ्लोट लेफ्ट नहीं लगा होगा तो ये राइट पर आकर एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर तो मुझे यानी कि उनको, अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों अपनी जगह पे ही रहेंगी, हाँ वो दोनों अपनी कोई जगह चेंज पे नहीं ही रहेंगी, वो ऊपर नहीं होगा। आएगी। सही। ठीक है, एंड लेट्स हैव अ ब्रेक लाइक 15 मिनट्स, और फिर हम 10 बल्कि 10:45 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं फिर हम इसको। ठीक है, कैसे यू गाइस आफ्टर ब्रेक?